It is a matter of great pride for us that GP Association has maintained its legacy of conducting morning CMEs since 1980s. It's almost been 3 decades कि हम लोग ये CME continue कर रहे हैं, and it was started with the aim to keep the doctors of the city up to date regarding the latest changes in the medical fields of various specialties. Usually we conduct 2 CMEs every month, mostly on alternate Wednesdays in the morning time, and the session lasts for around 1 hour, followed by quiz round. And we also distribute certificates and mementos to quiz winner and speakers as well, to motivate them and to motivate the audience as well. I am also glad that under the guidance of our President Dr. Shailendra sir and Secretary Dr. Smita ma'am, I was able to develop a website for GP Association which has all the scientific details and all the details of the association from the very beginning. All the data of scientific session is shared on YouTube nowadays, and the website has it so that it can reach the maximum number of people, and any students who are searching on net for any topic can get help from it. In the same sequence today, we are here to organize a grand annual scientific meet, and I hope this is going to be a wonderful session. Thank you. Now I invite Dr. Shailendra sir to take over the dais. अब हम जिनको सम्मानित करने जा रहे हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वैसे तो आसमान में सितारे बहुत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारे की बात अलग है। उनकी रोशनी हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर के त्रिपाठी को कि वो सर सामने आए। लोग आपका दर्शन कर सकें सर। व्यक्तित्व और कृतित्व से बनता है। पहले मैं कृतित्व पर आता हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी, एक्स प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, BHU वाराणसी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन MBBS, MD जनरल मेडिसिन, DM नेफ्रोलॉजी, MNA MS नेफ्रोलॉजी, FICP, FRSSDI, FUPDA, FISH, FIAMS, FRCP UK, एडिनबरा, FACP USA। पैराग्राफ है, लाइनें होती हैं डिग्री में। ये पैराग्राफ आपको एक संक्षिप्त कॉन्साइज व्यक्तित्व का आभास देगा। ऑनर्स एंड अवार्ड्स। रेसिपिएंट ऑफ पद्म श्री, वन ऑफ द highest civilian award of the Government of India by Honorable President of India। विनम्रता का भाव आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सर तो हमारे दिलों में, गोरखपुर वासियों के दिलों में हमेशा भारत रत्न शुरू से ही पाए हुए हैं। सरकार ने उनको पद्मश्री देके हम पर न्याय किया है। इंटरनेशनल अवार्ड्स। ट्रैवल फेलोशिप अवार्ड इन 9th and 11th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ नेफ्रोलॉजी फ्रॉम लॉस एंजलिस इन 1984 and Tokyo in 1990. National awards. 21 reputed awards for the best orations, debate, scientific articles in academic sessions from different city of India. सर से जब मैंने बायोडाटा मांगा था तो A4 साइज़ के, मैंने कहा था ब्रीफ बायोडाटा भेजिए। A4 साइज़ के 4 पूरे क्लटर्ड पेज आए थे। मैंने सर से कहा कि सर अगर हम आपसे डिटेल मांगते तो किताब आ जाती मेरे पास। मैंने उसको भी सॉर्ट किया है। पब्लिकेशन टोटल 300, 125 इन इंटरनेशनल जर्नल, 168 इन नेशनल जर्नल। टोटल नंबर ऑफ बुक एंड चैप्टर पब्लिश्ड 13। Recently, sir was an editor-in-chief of a Sadiko's International Book of Diabetes, which I presume is a Bible of diabetes.
डॉक्टरों में भी गिनीज बुक ऑफ अवार्ड होता है। रेसिपिएंट ऑफ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड साइटेशन 213 फॉर एनरोलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट ऑन द सिंगल डे एट वन साइट विद एसोसिएशन ऑफ नोवो ड्राइविंग। Now coming to administrative associations, he has officiated as Vice Dean, Indian College of Physicians, President, Indian Society of Wound Healing, President, Indian Society of Hypertension, President, UP Diabetes Association. Now coming to guest lectures, he has delivered guest lectures in 21 countries, including USA, UK, Canada, Russia and China. 21 countries, at least 21 foreign visits minimum. Now the conferences attended 45 international conferences and 18 national, inland 20. Sir की डिमांड क्या है? He is examiner at what institutions? For MBBS in 8 universities. For MD Medicine, 4 universities. For PhD, 7 universities. For DM Nephrology, BHU and DNB National Board of Examination. And Sir का Administrative Association, ICMR, Indian Council of Medical Research, Central Council of Research in Ayurveda and Siddha, CCRAS, DGCI, Drug Controller Council of India, and Director General Health Services, Ministry of Health, Gorakhpur. इन सबको सर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस अभी भी दे रहे हैं। कृतित्व के बाद व्यक्तित्व पर आता है सेवा भाव। सर पूर्वांचल के ही हिस्सा हैं। गोरखपुर के बगल में एक मदनपुर गांव है जहां सर का जन्म हुआ। 5 तक का प्रारंभिक शिक्षा वहां, कक्षा 5 तक। उसके बाद 6ठी से BSc तक ये राप्ती, पवित्र राप्ती द्वारा सींचे गए गोरखपुर शहर में हुआ है। तत्पश्चात इनकी चिकित्सा शिक्षा MBBS, MD, DM और फर्दर माँ गंगा के आंचल में बसे काशी नगरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ है। सर की साहित्य के अभिरुचि पर आते हैं। माँ सरस्वती वाग्देवी की कृपा इनके जिह्वा पर है। जहाँ ये फिराक के नज़मों के शौकीन रहे हैं, कविता इनके मुख से सुन के हम लोग हमेशा आह्लादित होते रहे। इतनी साहित्यिक अभिरुचि और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के हमारे सामने उपस्थित होने पर मेरी भावनाओं को मैं नियंत्रण में नहीं रख सका और मैंने चंद लाइनें सर के लिए लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सूरज की स्वर्णिम आभा से वातायन सुरभित हो जाए, विहग चिड़िया विहग चहक उठे पेड़ों पर, फूल खिले भौरे मुस्काएं, समझ लो कमलाकर आए, समझ लो कमलाकर आए। पवित्र राप्ती बाल मन सींचे, गंगा अमृत रस से भींगे, महादेव की कविता गूंजे, नज्म फिराक फिजा लहराए, समझ लो कमलाकर आए, समझ लो कमला। नाट्य देव जब शिव मुस्काए, देख भरत पुत्र माँ सरस्वती, वीणा स्वयं झंकृत हो जाए, समझ लो कमलाकर आए, समझ लो कमला। आज महामना स्मित है हर्षित, महामना मदन मोहन मालवीय जिनकी कृपा सर पर हमेशा बनी रहती है। आज महामना स्मित है हर्षित, सम्मान पद्मश्री स्वयं हुई अलंकृत, अलख निरंजन कबीर के दोहे, पूर्वांचल में जब फाग जगाएं, समझ लो कमला कराए, समझ लो कमला कराए। जीपी सदस्य, जनरल प्रैक्टिशनर सदस्य, हम सब आप लोग सदस्य हैं गौरवान्वित, कमलाकर को कर सम्मानित, प्रार्थना करें प्रभु से यही हम, शीघ्र आप भारत रत्न लाएं। आह्लादित मना पुनः ये बोले, देखो फिर कमलाकर आए, देखो फिर कमलाकर।
सर से आग्रह है, सर आशीर्वाद के 2 वचन हम लोग को। माइक इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। इस सभा के मुख्य अतिथि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुबे जी, हमारे बाल काल के सहपाठी हैं कृष्ण गोपाल सिंह जो आगे बैठे हुए हैं, इस सभागृह में उपस्थित मैं कुछ लोगों को अवश्य पहचानता हूँ। राम भवन द्विवेदी, डॉक्टर राम भवन आरबी द्विवेदी, उन्हें तो मैं पहचानता हूँ अच्छी तरीके से। उम्र में हमसे जवान लगते हैं, बड़े हैं वैसे। और कुछ विद्यार्थी हैं जिनके नाम तो अभी डॉक्टर नवनीत जयपुरियार, उदीयमान कार्डियोलॉजिस्ट गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के हमारे 2 वरिष्ठ सहकर्मी हैं यहाँ पे, डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर राजकिशोर। एक दूसरे बड़े ज्ञान के बड़े ही निष्णात व्यक्तित्व हमारे बीच हैं छिपे हुए, डॉक्टर नागरथ, ये भी बड़ी ज्ञान की परंपरा के चिकित्सक हैं, बड़े ऊंचे ज्ञानी हैं। और इस कार्यक्रम के संचालक जिनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही, हमारे परम प्रिय, और कृपा इसलिए कि यह जो औरस पुत्र की परंपरा है, उसके बाद जो विद्यार्थी आपके होते हैं इनसे आप जीवित रहते हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब हमारे सामने हैं, ये परिवार के हमारे चिकित्सक यहाँ हैं। फिराक साहब को आपने मुझे यहाँ से जाते समय छोड़ के चले गए थे, हम वहीं से शुरू करते हैं। फिराक साहब बहुत तरक्की पसंद शायर नहीं थे, बड़ी मुफलिसी वाले शायर थे, और मुफलिसी को महसूस करते थे बहुत करीब से। और हमारे जैसा आदमी जिसके सारे संस्कार मुफलिसी में हों, अभी जो बच्चे गा रहे थे, मैं भी कभी शायद 6-7 वर्ष का रहा होऊंगा, और यहाँ जुबली स्कूल के पीछे भी एक जुबली ब्रांच है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो हमारी शिक्षा गांव के बाद वहाँ से शुरू हुई। मैं जब आया तो उसे मदरसा, ये शब्द मदरसा था, ब्रिटिश हुकूमत चली गई थी तो 47 में, लेकिन जो हम लोग के स्कूल होते थे गांव में, उसके साथ ही मदरसा लफ्ज़ लगा रहता था। हमें नहीं पता था मदरसा किसको कहते हैं, बाद में पता चला। और जो हमारी सनद थी उस पर लिखा हुआ था दस्तखत हेड मुदर्रिस, तो समझ में आया कि मुदर्रिस क्या चीज़ होती है। और जब मैं गोरखपुर में यहाँ आया पढ़ने, उसके पहले भी नॉर्मल स्कूल था लड़कियों का, महात्मा गांधी स्कूल के पीछे लाल जी की गढ़ई हुआ करती थी वो, उसमें एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल होता था नॉर्मल के लिए, जेटीसी से भी छोटा। तो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तो यहीं पढ़ी। गणित में बहुत कमज़ोर हो गया, किसी काम लायक नहीं रहे, तो वापस गांव चले गए। और वहाँ मुंशी जी ने मार पीट के दुरुस्त किया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। और जुबली ब्रांच जब पढ़ने जाते थे तो नंगे पांव जाते थे, जूते पहनने पर बड़ी मार पड़ती थी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चा जूता पहन के जाए तो मुंशी जी या पंडित जी बड़ी मार मारे कि जब ये जूते ही पहन के आएगा तो पढ़ेगा क्या, तो बाबू पढ़बाओ कौन चीज़, जब जूता पहन के आए गए हो। तो जूता पहनना बड़ी सख्त सज़ा होती थी। और मैं किसी कार्यक्रम में था, जैसे आपने कहा, मैं भी नाचने गाने वाली परंपरा का, मंच परंपरा का व्यक्ति था, तो पास में, तब उसको टाउन हॉल कहते थे, एक गांधी पार्क हुआ करता था, जहां हमने लाल बहादुर शास्त्री को भाषण देते हुए सुना है, इंदिरा जी का भाषण सुना है वहाँ, चौधरी चरण सिंह का भाषण वहाँ सुना है, और विश्वविद्यालय परिसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण सुना है। तो हमारे जो स्कूल के पंडित जी थे, मुंशी, 2 लोग, ये शब्द साथ रहता था, तो बिरादरी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाने वाला आदमी 2 ही होता था, या तो मुंशी होता है तो पंडित होता था।
तो उन्होंने मुझे पकड़ के मेरी उंगली ले गए और उस पेट्रोल पंप के पास, और मैं तब घूम घूम के सोहर गाया करता था, राष्ट्रीय धुन पे सोहर गाता था। और एक कार के सामने उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, स्टैंडर्ड 10 कार गोरखपुर में सिर्फ 2 लोगों के पास थी। एक तो डॉक्टर SP अग्रवाल पहले MD थे, 1955 में गोरखपुर आके वो बसे, और एक कार से वो आते थे, और अली नगर की उस पतली सी गली में पता नहीं कैसे उनकी कार खड़ी रहती थी और भीड़ नहीं होती थी। और दूसरी जो स्टैंडर्ड 10 गाड़ी थी वो डॉक्टर KN लहरी साहब की थी। तो उन्होंने मुझे उस गाड़ी के पास खड़ा कर दिया और कहा कि सोहर सुनाओ। हम सोहर सुना रहे, हमें क्या मालूम किसके। डॉक्टर लहरी निकले, 5 रुपया उन्होंने पुरस्कार दिया। 5 रुपया पुरस्कार 1958-57 में कितनी बड़ी राशि होगी। जब स्कूल जाते समय 2 पैसा अगर मिला, पैसा, नया पैसा नहीं, पैसा, वो बड़ी भारी राशि होती थी। तो मेरे तो संस्कार वहाँ से हैं। आपने इतने सारे शब्द हमारे लिए कह दिए, तो हमारी तो पात्रता कहीं नहीं रही। फिजिक्स में इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द मेटल, टू विच आई नेवर डिजर्व रादर। और अगर हमारे जैसे दरिद्र यायावर व्यक्ति को, जो किसी काम का ना हो, पुरस्कार मिल जाए तो ये तो और बड़ी भारी विपत्ति हो गई। You couldn't sustain it rather। और फिराक साहब का ये शेर आप अपने दिमाग में रखिए। कितने लोगों ने फिराक साहब को पढ़ते हुए देखा है? शायद किसी ने नहीं। आपने, हाँ, हमारे उस समय के फिराक साहब के आशिक लोग बहुत दूसरे लाइन के होते थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इलाहाबाद, हाँ, वो प्रयाग जाके बसे। वाह। डूबने वाले साहिल के तमाशाई अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं, मगर इमदाद नहीं देते। मैं डूब गया एक शाम रही अहले साहिल को मैंने बुलाया। तो फिराक साहब का शेर है कि घबरा गया हूँ कामयाब ये तकदीर देखकर। भाग्य का ये जो चमत्कार, जो ईश्वर की कृपा हुई, घबरा गया हूँ कामयाब ये तकदीर देखकर। अगर उर्दू समझने वाले हों, या फिर सितम ज़रीफ़ ये तकदीर देखकर। कालिब में रूह फूंक दी या जहर भर दिया, हम डर गए हयात की तस्वीर देखकर। और हैरान जो हम हुए थे तसव्वुर में ना कभी, तस्वीर रह गए तस्वीर देखकर। और ये इसका मक्ता है शेर का, सब मरहले हयात के तय करके ए फिराक, बैठा हुआ हूँ मौत की ताखीर देखकर। ये जो मौत का सुख है और ये अनंत जो सुख है, ये काशीवासी ही जानता है। उसे वहाँ वो शांति मिलती है। काशी बड़ी विचित्र जगह है जहाँ जीवन का बाकी हिस्सा भी 19 साल तो हम गोरखपुर में रहे, और हमारे मोहल्ले में तो बिजली नहीं थी। हम MSc प्रीवियस तक यहाँ पढ़े, जुबली स्कूल से लेकर के लगायत प्राइमरी दर्जा से, और हमारे घर में बिजली नहीं थी गोरखपुर में। म्यूनिसपैलिटी वाला कंधे पर लालटेन रख के आता था और मिट्टी का तेल डालता था, और तब रात में रोशनी होती थी। ये गोरखपुर का आलम था। इस हालत में हम गोरखपुर को छोड़ के गए। एक MD सिर्फ डॉक्टर SP अग्रवाल साहब, बाकी गिने चुने लोग, डॉक्टर कौशलानंदन उस समय, दूसरे एक और डॉक्टर सेन गुप्ता साहब, एक छोटे हमारे बनारस से SP अग्रवाल साहब आके बस गए थे डॉक्टर SP अग्रवाल के दुकान के सामने। बड़ी मुश्किलाहट में वो समय था। हाँ, डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर सेन गुप्ता, ये शहर था हमारा। इतने ही डॉक्टर थे यहाँ, और डॉक्टर लहरी आइकन हुआ करते थे। सर्जन, फिजिशियन, जो शब्द इस्तेमाल करिए, अंतिम वो शब्द, अंतिम पर्चा उनका होता था। वहाँ से काशी पहुँचे, बड़ी कृपा रही शिव की, भगवान शिव की,
और जब पीएमटी में सेलेक्ट हुए, पहली बार में वहीं सेलेक्ट हो गए, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। तो इतनी फीस देने की औकात नहीं थी, जबकि बहुत कम फीस, 225 रुपये तो फीस लगते थे पूरे 2 प्रोफेशनल के इकट्ठे ही, उतनी भी ना औकात हो। इसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो जाए, अनंत कृपा हो जाए, यह संस्कार का कारण है। इसको आप अभी लिगेसी इफेक्ट कहते हैं। डीएनए पे इम्प्रिंट हो जाए, मेथिलेशन हो जाए डीएनए का मोलिकुलर बायोलॉजी के हिसाब से, एपिजेनेटिक्स, सीक्वेंस बदल जाए अमीनो एसिड के। और इन परिस्थितियों के बाद जब वो संस्कार आदमी के बदलें, फिर आदमी तो आप बहुत निहायत ही साधारण हो। और ये काशी की परंपरा है महामना मालवीय जी की। अभी आपने जो 2 IMA के प्रेयर कहे हैं, एक प्रेयर तो आपने कहा सर्वे भवन्तु, यह वैदिक मंत्र है। दूसरे के बारे में आप बहुत कम जानते हैं। IMA ने उसको ले लिया, न तुहं कामय राज्ञम न स्वर्गम न पुनर्भवम। ये पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की स्वयं की रचना है। तो जिस विश्वविद्यालय का इतना बड़ा संस्कार हो, हमारे जैसे क्षुद्र व्यक्ति जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अगर वहाँ जा कर के थोड़ी सी गंगा की बहती हुई एक बूंद भी उन्हें मिले, तो इसमें तो तपस्या हमारे माता पिता की है, हमारे गुरुओं की है, मालवीय जी महाराज की है। हमारे शिक्षक कैसे थे? प्रोफेसर PK श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर जानकी प्रसाद के भाई, छोटे भाई, जिन्हें कि साइकिल भी चलाना नहीं आता था, पैदल आते थे। MD DCH वो बॉम्बे से थे, ये हमारे गुरु थे, ये गोरखपुर के थे। और जीवन भर वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। एक नया पैसा किसी कोई नहीं कह सकता कि उनको उसने फीस दिया। ये हमारे टीचर थे। हम उस परंपरा से आते हैं। सुना है इश्क नाम के एक बुजुर्गवार गुजरे हैं, हम भी फकीर आज उसी सिलसिले से हैं। ये जो फकीरी है हमारी, ये जो भीख मांगने की परंपरा है, जो उदात्त है, जो दान देने की परंपरा है, ये परंपरा तो गोरखपुर का संस्कार है। यहीं के लोग हैं, ये खून ही अगल बगल का है। तो सारा परिश्रम, सब कुछ तो आपका है, आपका अभिनंदन होना चाहिए। हम तो मंच के वो लोग हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। जैसा आपने स्क्रिप्ट दिया, जैसा नाटक में आपने कहा, वैसा हमने रोल कर दिया। बाद में तो वही कतवारू पनारू हैं, वही बीड़ी पीने वाले सीता जी हैं। जब मंच पे हैं तो सीता हैं, पाँव छू रहे हैं लोग, मंच से उतरे पिछवाड़े बीड़ी पी रहे हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है पर काया प्रवेश। जो नाटक का व्यक्ति है, नाटककार है, वो दूसरे की काया में प्रवेश करता है, अभिनेता, और तब वापस आता है। भगवान भागवत में कहते हैं, ये 11वां स्कंध है भागवत का, और ये उद्धव जी को अंतिम उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, सर्वधर्मान। अब देखिए ये दोनों, एक गीता से और ये दोनों, वो तो अंतिम है, सर्वधर्मान परित्यक्तम माम एकम शरणम व्रज। भागवत में भगवान ने कैसे कहा, मृत्यु यदा त्यक्त समस्त धर्मा। मृत्यु हमारे लिए आया है, हम सब जो लोग मरेंगे, पद मर्यादा साथ नहीं रहेगी, ये तो जाएगी ही जाएगी, और बहुत जल्दी जाती है। और सरकारी पद तो बड़े जल्दी हाथ से फिसलते हैं, बड़ा कष्ट है, प्रशासक को बहुत कष्ट है। मैंने 10 वर्ष सरकारी गवर्नमेंट के साथ खराब वाला काम, अभी भी करते हैं उसको, और वो होता है चिकित्सकों को दंडित करने वाला काम। अगर कहीं आपसे मृत्यु हो गई, किसी शोध कार्य में कोई मरा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, मैं दुर्भाग्य से उसका सदस्य हूँ, और कई बार बड़ा कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। मृत्यु यदा त्यक्त समस्त धर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितों में। भगवान कहते हैं ये जो मृत्यु की ओर उन्मुख प्राणी है, ये भागवत का है, स्कंद का 11वां स्कंद का। जब वो सारे कर्म और धर्म से मुक्त हो जाए, छोड़ दे, त्याग दे, और एक बार निवेदन करे, तब मैं क्या करता हूं, विचिकीर्षितों में,
तब माँ की तरह मैं उस बच्चे का श्रृंगार करता हूँ, उस बालक का श्रृंगार करता हूँ। और क्या करता हूँ? तत्व आत्म तत्व प्रतिपद्यमानो, यह जो परम आत्म तत्व है ईश्वर का, तब मैं ये उसकी आत्मा में प्रवेश करा देता हूँ, ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। इक्सी मेथड से ट्रांसप्लांट करते हैं। IVF होता है ना गोरखपुर में, इक्सी मेथड होता है। साइटोप्लाज्म को हटा करके उसके अंदर न्यूक्लियस डाल दिया आपने। यह भगवान काम करते हैं। तब आत्म तत्वम प्रतिपद्यमानो मम आत्म भूयात, वो तब मेरे जैसा परम तत्व ईश्वर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। चै कल्पते वे, यह भगवान की कृपा है। तो अगर मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी ईश्वर की कृपा हुई, तो ये सब प्रेम, सब आशीर्वाद हमारे गुरुओं का है, हमारे लोगों का है। और जैसा सर विलियम ऑस्लर कहते थे, विलियम ऑस्लर वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हिपोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन, विलियम ऑस्लर फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और सर विलियम ऑस्लर कहते हैं कि पेशेंट्स आर योर स्लेट ऑन विच यू लर्न ABCD ऑफ मेडिसिन। ये सबसे बड़ा चिकित्सा शास्त्र में अगर कोई आपका शिक्षक है, किसी का कोई योगदान है, किसी की मर्यादा है, किसी की वजह से आपकी जीविका चलती है, आपका व्यक्तित्व है, आपका ज्ञान है, आपका परिवार है, वो हमारा रोगी है, वो सर्वोपरि है। अगर रोगी न होता तो हम कहाँ होते? हम तमाशा हैं, कोई देखने वाला भी तो हो। और क्या तमाशा है कि हम खुद ही तमाशा देख रहे हैं। यह कृपा हमारे रोगियों की, पूर्वांचल के रोगियों की। जब यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बना था, जब SGPGI लखनऊ भी नहीं था, जब इतने सारे एम्स नहीं थे, जब मेडिसिटी मेदांता भी नहीं था, उस समय से हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्वांचल के रोगी जाते थे, हमारे क्षेत्र के लोग जाते थे। एक नया पैसा नहीं लगता था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा थी। एक नया पैसा फूटी कौड़ी ना लगे, अस्पताल में भर्ती हों, खाना दोनों समय मुफ्त मिले, पूरी दवाई मुफ्त मिले, सारे जांच मुफ्त हों। जो कपड़े पहन के रोगियों को दिए जाते थे सर्जरी के पहले, वो कपड़े पहन के घर चले जाएं, तो बड़ी भारी भगवान की कृपा। ऐसा संस्कार हिंदू विश्वविद्यालय का, ऐसा त्याग हमारे रोगियों का, ऐसी उनकी श्रद्धा कि उन्होंने हमारे प्रति आसक्ति दी। और आप नहीं जानती, ये जो जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, इसका कितना बड़ा चिकित्सा शास्त्र में योगदान है। आपका योगदान किसी नोबेल प्राइज विनर से, किसी बेंच मेडिसिन वाले से, किसी लेबोरेटरी से, आपका उससे कहीं बड़ा योगदान है। और मैं चिकित्सा शास्त्र का इतिहास मैं 40 वर्षों तक यही पढ़ाता रहा। बहुत सारी चीज़, ये भी एक काम करता रहा। अनंत ऐसे शोध हैं, बीटा ब्लॉकर, डिजिटलिस, इस सब की सारी उपयोगिता इस जनरल प्रैक्टिशनर से फीडबैक होके आई। मेटफॉर्मिन, डायबिटीज़ की, हमारे नागरिक जानते हैं, वो डायबिटीज़ के बड़े ज्ञानी आदमी हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं। मेटफॉर्मिन ऐसी औषधि थी जो विदेशों से वापस फेंक दी गई। अमेरिका ने उसको, FDA ने मान्यता बहुत दिनों तक नहीं दी। ये जनरल प्रैक्टिशनर ही थे जिन्होंने मेटफॉर्मिन को लिख लिख करके आज पुनः वो विश्व में स्थापित हुई। किसकी वजह से? किसी SGPGI की वजह से नहीं, किसी एम्स की वजह से नहीं, किसी लेबोरेटरी, किसी नोबेल प्राइज विनर, किसी पद्मश्री पद्म भूषण वाले की वजह से नहीं, आपकी वजह से। आपका योगदान है मेटफॉर्मिन को ऊंचा ले आने में। बीटा ब्लॉकर इन हार्ट फेलियर, पता नहीं जब आप पढ़ते रहे हों और कोई MD वाला हमारे समतुल्य हो, अगर आप परीक्षा में बता दें कि हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर देते हैं, तो MD तो 3-4 साल NN गुप्ता साहब नहीं देंगे आपको। अगर कोई आप में से NN गुप्ता जिसके एग्जामिनर रहे, उसको पता होगा वो कैसे एग्जामिनर थे। वो नहीं, आपके समय तो रिटायर हो गए थे। वो हम लोगों के समय हमारे एग्जामिनर्स होते थे, नाम सुना था, NN जी साहब का। आज बीटा ब्लॉकर congestive heart failure में is one of the molecule which is given even in dilated cardiomyopathy with low perfusion state. किसकी वजह से? नागरथ साहब जैसे लोगों की वजह से, डॉक्टर अशोक ग्रवाल जैसे लोगों की वजह से।
शैलेंद्र कुमार जैसे लोगों की वजह से, बिकॉज दे कंटिन्यू टू राइट इट. दिस ट्रेस वुड हैव बीन थ्रोन अवे. हु सस्टेन्ड इट? यू. और मैं भी आपको सबसे ताजी बात बता दूं, टॉलब्यूटामाइड जैसी दवाई जो हमने लिखी, हमारे टीचर्स ने लिखी डायबिटीज़ के लिए, आज की तारीख में शोध ये कहता है कि बीटा सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में टॉलब्यूटामाइड का पुनः रोल है. तो सल्फोनामाइड कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं. मेडिसिटी वाले तो नहीं चला रहे हैं, SGPG वाले तो नहीं चला रहे हैं, आपकी वजह से चलता है. तो आपका बड़ा योगदान है चिकित्सा शास्त्र को, उसके शोध को स्थापित करने में, रोगियों की सेवा करने में, समाज सेवा करने में. इसलिए ईश्वर करे आप जैसी संस्था फले फूले, बहुत दिन तक रहे, जीवित रहे और सबको सिंचित करती रहे. इस ईश्वर के लिए एक बार पुनः साधुवाद. धन्यवाद.